question paper that is of your periodic test. Sorry, not periodic test. This was your term 1. Okay, this was your term 1 because you have finished and completed with the term 1, and now we'll be starting with the term 2. That is a new term, and that is going to be subjective now onwards. Okay, subjective plus objective both. For next term, you will be sitting for both subjective and objective tests as well as the papers. Till now it was MCQs and they are now over, and you just listen to the answers. If you have any controversial answer for you, then you can please ask me. You can please raise up your hand and ask me. Okay, so now let us start. 1 second. So now let us start with the first answer of set A. An example of the exile presentation is, what is an example of the exile presentation? It's argemon, dianthus, lemon, or marigold. It is C answer, that is lemon. Okay, the following diagrams represent the type of the estivation in corolla. ये following diagrams हैं, अगर आपको देखने हैं जिनका ये set नहीं था. 1 second. हाँ जी, so these are the estivations and you had to match it with these estivations. Okay, the names have been given, right? Hold on. हाँ जी. So what was the match? First one is the velvet, second is twisted, third one is with 3 overlapping, it is imbricate, and last is vexillary, obviously. ठीक है, so vexillary last थी, वो तो आपको पता ही था, so answer could have been D. Correct. Which of the following floral formulas correctly shows the flower having the following characters? I'm writing it side by side if you want to note down. One is C, second was D. Okay. Now the third is, which of the following floral formulas correctly shows the flower having the following characters, namely zygomorphic. Zygomorphic के लिए क्या symbol होता है? Like this. ठीक है. Then bisexual. Bisexual it could have been this one. ठीक है. Then 5 polysepalous. Poly का मतलब क्या होता है? Not fused. ठीक है. So sepals के ऐसे होते हैं और ये 5 not fused, right? Then 5 gamopetalous. 5 gamopetalous. 5 corolla, gamo means they are fused. ठीक है. Next is stamens 5. Stamens means androecium. So the next out here will be androecium, which is going to be 5 now, and stamens 5. Bicarpillary syncarpus inferior ovary. तो bicarpillary मतलब 2 कार्पल्स हैं, syncarpus मतलब fused हैं, inferior मतलब नीचे नहीं ऊपर लाइन आएगी, यहाँ 2 के ऊपर आए या G के ऊपर, तो यहाँ आपके आंसर में G के ऊपर लाइन था, that is in option D. ठीक है, so answer is D. जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि बेटा आंसर्स क्वेश्चंस ऐसे अभी भी आएंगे आपको, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू खत्म ही हो गए हैं, क्वेश्चंस अभी भी आएंगे, और रादर अब 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 के 10 डिफरेंट और थॉटफुल होंगे, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, आपको ऐसे मैच वाले या आइडेंटिफाई वाले कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ 2 आ गए 3 आ गए, है ना, तो पर अब नहीं ऐसा आएगा, एक मैच आएगा, एक करेक्ट स्टेटमेंट आएगा, एक 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 करके हर टाइप का एक एक एमसीक्यू आएगा. So that is again going to be difficult. So don't take it very lightly now that you are going to sit for the objective and subjective. You will be not hurt with this objective one. Okay, don't take it very lightly. And rather, you people are preparing for your NEET exams. You should come up more with your MCQs. है ना? Okay, so coming to the 4th question of set A again. Obliquely placed ovary and swollen placenta is associated with which of the following families? Obliquely placed ovary, swollen placenta, ये हमने एक ही फैमिली पढ़ी थी, Solanaceae, उसके ही दोनों कैरेक्टर्स हैं. So here the answer is B. 4th answer is B. Okay. Next is, find out the pairs which are correctly matched with respect to the estivation in the plants. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है आपको और साथ में दिया है उसका एस्टिवेशन, तो आपको करेक्ट मैच ढूंढना है. फर्स्ट इज वेलवेट कैलोट्रोपिस. इज इट करेक्ट? Yes or not? Yes. Put your thumbs up for the yes, thumbs down for no. Anji, was it a correct match? Velvet and Calotropis. Yes or no? This was a correct match. Velvet is shown in Calotropis plants. Second is twisted in beans. Is it correct? Twisted in beans. Yes. Give me the answer. Twisted estivation is seen in the beans? No.
It is not seen. Third is imbricate in cassia. Cassia fistula. Cassia में होती है imbricate. Yes. हाँ जी. Yes. Cassia में होती है imbricate. Right दिया. Very good Ramanjeet. Next is maxillary in China rose. No. Maxillary corolla की होती है और वो सिर्फ P में होती है. ठीक है. So 1 and 3 are the correct answers and answer is C. ठीक है. So यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चंस ऐसे आते हैं बेटा तो क्वेश्चन में ही सॉल्व किया करो इन चीजों को. ठीक है. राइट रमनजीत, वेरी नाइस. नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन. Which of the following substances if introduced into the blood stream would cause coagulation of the blood at the site of the introduction? Which of the following are going to, if introduced into the blood, they are going to cause the coagulation? Coagulation किसकी वजह से होती है? Whether it is heparin, it is fibrinogen, prothrombin or thromboplastin. Blood clotting किसकी वजह से होती है? Blood हमने एक component पढ़ा था, that is the blood as a tissue, fluid tissue. उसके 4 components हैं और thromboplastin अगर introduce कर दिया जाए तो ये रिलीज करेगा coagulation का further process. So यानी कि यहाँ पे आंसर आना चाहिए आपका 6 का D. ठीक है, thromboplastin. If you have any controversial answer, then please raise your hand. Otherwise, you for the answers given, you please don't raise your hands. Okay. If it is true false types, then you can simply just put on. Hanji Sehaj, you have a problem? You can just put on thumbs up and thumbs down. Hanji Sehaj, बोलो. मैम फिब्रिनोजन ही होना चाहिए इसका. फिब्रिनोजेन तो बेटा लास्ट स्टेप है इसका. ब्लड क्लॉटिंग आपके 10th में करेंगे तो वही है इसका. फिब्रिनोजेन तो ऑलरेडी उसके अंदर प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर और ये लास्ट स्टेप है जहां फिब्रिनोजेन थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में फिब्रिन बनाता है ना. ओके मैम. फिब्रिनोजेन तो ऑलरेडी सॉल्युबल फॉर्म में ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही पड़ा, तो हमने इंट्रोड्यूस क्यों करना है उसको? हमारा हर रोज कोई क्लॉटिंग तोड़ना हो रहा है ब्लड का, है ना. ओके. नेक्स्ट इज थोड़ा सा आपको प्रीवियस नॉलेज भी ऐड करनी चाहिए जब भी आपको ऐसे कोई क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज ऑफ व्हाट काइंड? हाँ जी, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज ऑफ, दे आर लूज कनेक्टिव टिश्यू और द फाइब्रस, क्योंकि नर्वस और कनेक्टिव तो है ही नहीं है. लूज है कि फाइब्रस है? लूज में सिर्फ आपने पढ़े थे रोलर और एडिपोज, तो ये क्या है? फाइब्रस. आंसर इज सी. ठीक है. नेक्स्ट, bipolar neurons. Bipolar neurons are found in or they occur in retina of eye. Bipolar क्या होता है? जब आपको ये ऐसी कुछ टर्म्स नहीं पता, मैंने आपको बताया था, कभी कोई न्यू टर्म आ जाए तो आपने इसको स्प्लिट करना है. बायो में हमेशा स्प्लिट द टर्म. बाय मीन्स टू, पोलर मीन्स पोल्स. कौन से होते हैं न्यूरॉन के पोल्स? एक तो उसका रिसीविंग एंड डेंड्राइट है ना, जो कि लगा है यहाँ स्टार शेप स्ट्रक्चर के ऊपर जो हमने बनाया था, इफ यू रिमेम्बर. फिर उसके बाद जहां ये एंड होती हैं तो वहां पे बनाती हैं नोड्स. तो पोल्स क्या हुए? एक तो हमारा ये पोल है, एक हमारा ये पोल है. तो मतलब सिर्फ उसके पास 2 ही पोल्स हो. ये ब्रांचेस और सब ब्रांचेस ये इतना सारा कुछ ना हो, 2 ही पोल्स हो, सिर्फ एक डेंड्राइट ऐसा और एक इसके पास नीचे नर्व एंडिंग ऐसा, है ना. तो मतलब क्या है कि सिर्फ एक ही जगह से इंफॉर्मेशन उठाया और एक ही जगह को आगे पास ऑन किया, सेपरेट फॉर्म में नहीं दिया. ठीक है. मल्टीपोलर नहीं है, ये बाइपोलर है. तो बाइपोलर न्यूरॉन्स किस में होंगे? रेटिना ऑफ आई, ऑफ कोर्स. रेटिना ऑफ आई में क्या होता है? रेटिना इज टू टेक द इमेज एंड बैक इट इज गोइंग टू द ब्रेन. तो एक से लिया, एक को दिया, है ना. सो दैट इज रेटिना ऑफ आई, दैट शोज द बाइपोलर. करेक्ट. सेकेंड इज ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम. ऑल्फैक्टरी क्या होती है? स्मेल नोब्स, है ना. ऑल्फैक्टरी नोब्स, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, अगेन अ सेंस ऑर्गन. Sense organ, they will be catching one signal, passing on one signal. So that is again the correct answer. Okay, next is inner ear. Inner ear means again a sense organ. Sense organ catching from one, giving to another. That's it. So bipolar is present. And brain. Brain is not. Brain has to collect it from all. ठीक है. ब्रेन को सब ऑर्गन से लेना है, सब ऑर्गन्स को देना है इंफॉर्मेशन. So इसलिए ब्रेन में कभी भी बाइपोलर नहीं हो सकता था. So your answer for 8 is 1, 2 and 3 are correct. ठीक है. That is A option. Which one of the following is correct pairing of the body part and kind of muscle tissue that moves it? Question is, which of the following is correct pairing of the body part? अच्छा, body part दिया है
और काइंड ऑफ मसल टिश्यू जो उसको मूव करवाने में हेल्प कर रहा है, दैट इज गिवन. सो व्हाट इज दिस? हार्ट वॉल, इनवॉलेंट्री, अनस्ट्राइटेड मसल. नो, दिस इज नॉट अ करेक्ट पेयर, क्योंकि हार्ट वॉल में इनवॉलेंट्री अनस्ट्राइटेड तो होंगी नहीं, कार्डियक होती. ठीक है. बाइसेप्स ऑफ अपर आर्म, स्मूथ मसल टिश्यूज. बाइसेप्स में कौन सी मसल टिश्यूज होती हैं? आर दे द स्मूथ मसल टिश्यूज ऑफ द अपर आर्म, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स में? हाँ जी, कौन सी मसल आर्म्स होती हैं, सॉरी कौन सी मसल फाइबर्स होती हैं, स्मूथ होती हैं, स्ट्राइएटेड और अनस्ट्राइएटेड? दो ही होंगी, दोनों में से कोई एक होंगी. When you are contracting it, you are doing it by on your own will, ना? They are not contracting by themselves every time. हर बार आपका हाथ अपने आप तो पीछे आ नहीं जाता, आप चाहो तो हाथ पीछे आएगा ना. So that is, it is striated, that is, it is skeletal, not the smooth or unstriated. This is again a wrong. Abdominal wall with smooth muscles. Abdominal wall is having the smooth muscles. हाँ जी, is it a correct pair? Abdominal wall, abdomen. अच्छा, एब्डोमिनल वॉल मतलब आपका पूरा एब्डोमिनल रीजन, नॉट जस्ट द स्टमक. नो अर्शप्रीत, दैट इज रॉन्ग. एब्डोमिनल वॉल मींस योर होल एब्डोमिनल कैविटी. ठीक है, वी आर नॉट सेइंग द एब्डोमिनल वॉल ओनली फॉर द स्टमक. ओके, स्टमक नहीं बोला हमने गला. सो दिस इज अगेन रॉन्ग. दैट इज द स्किन है, स्किन के नीचे मसल टिश्यूज जो हैं वो अपने आप तो कंट्रैक्शंस दे नहीं रहे. अगेन ये स्मूथ तो नहीं आएगा. ठीक है, सो नन ऑफ दीज, यस ऑफ कोर्स नन ऑफ दीज इज एन आंसर. कोई भी इसमें से करेक्ट पेयर नहीं. ठीक है, सॉरी आंसर लिखते हैं. दिस इज 9D. Which statement is incorrect? You put your thumbs up and thumbs down for correct and incorrect. Which statement is incorrect? Mast cells and basophils secrete histamine and heparin. Is it correct? आपको incorrect ढूंढनी है, सॉरी. हाँ, तो is this incorrect? Mast cells histamine और heparin secrete करते हैं. Basophils and mast cells, they do secrete the heparin and histamine. That is because of which your immunity is created. Okay. Next is mast cells are smaller than basophils with a bilobe nucleus. Mast cell में bilobe nucleus नहीं होता और ये बड़े साइज के होते हैं. basophils होते हैं WBCs वाले cells. तो ये wrong है. ठीक है, B is wrong. Mast cells are long lived, basophils are short lived. Okay. Mast cells are relatively sessile, basophils are mobile. Sessile means immovable and basophils are mobile. Yes, that is also correct because of the bloodstream. They are movable. So the answer for 10 is B. Answer जो है आपका, that is B statement is correct. Incorrect. यहाँ पे आंसर आएगा. हाँ जी अदिति, what is the problem? मैम B पॉइंट दोबारा समझाना. B वाला पॉइंट? यस मैम. बाइलोब्ड न्यूक्लियस जो होता है ना बच्चे, वो आप WBCs के स्ट्रक्चर्स देखेंगे ना, तो उनमें इस तरह से बाइलोब्ड न्यूक्लियस ऐसे आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ऐसे. ठीक है, बाइलोब्ड न्यूक्लियस, दो लोब्स बने हुए हैं न्यूक्लियस के. तो ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बोल रहा है बेसोफिल्स विद अ बाइलोब न्यूक्लियस होते हैं और मास्ट सेल्स आर स्मॉलर देन बेसोफिल्स विद अ बाइलोब. मतलब क्या है कि मास्ट सेल के अंदर ये ऐसा न्यूक्लियस होता है. क्या हमने ऐसा न्यूक्लियस बनाया था जब हमने डायग्राम बनाया था एरोलर का? नहीं बनाया था. ठीक है, क्योंकि ये उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ही नहीं. ये फीचर है बेसोफिल्स का. जब उल्टा लिख दिया यहाँ पे कि मास्ट सेल्स छोटे हैं और बाइलोब न्यूक्लियस वाले हैं, जो गलत है. बेसोफिल्स हैं. आपको स्टेटमेंट थोड़ा कंफ्यूजिंग डाल दिया यहाँ पे. मास्ट सेल्स आर स्मॉलर देन बेसोफिल्स विद द बाइलोब न्यूक्लियस, मतलब बेसोफिल्स की बात नहीं हो रही है, मास्ट सेल की बात हो. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11. ओके, दिस वाज अ डायग्राम. आई न्यू इट. मेरे ख्याल से यही वाला मैक्सिमम्स ने गलत किया है. ये देखिए डायग्राम अगर आपको दिख रहा है. हाँ जी, इज इट विजिबल? सो दिस वाज द डायग्राम एंड द लेबल्स वर A, B, C एंड D. ठीक है, ये लेबलिंग्स हैं. नीचे आपको ये लेबलिंग के लिए पार्ट्स दिए हुए हैं. अब आपको लेबल करना है A, B, C, D में करेक्ट वाला पार्ट कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि नाम तो हमने लिखवाने नहीं थे, तो इसीलिए आपको रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट नेम इस तरह का क्वेश्चन डाला है. सो नाउ हियर what is A? A is very clear. What is A? It is cristae, inner membrane, cytoplasm, SER, RER, RER है ना. RER है, देखो यहाँ पे, एक मिनट. हाँ जी, दिस इज RER क्योंकि राइबोसोम्स बने हुए ऊपर दिख रहे हैं. रफनेस है और क्लियरली दिखाती हूँ, एक मिनट. हाँ जी, इज दिस क्लियर ना? सो दिस इज व्हाट इज A here? It is RER. Okay, what is B? Can you tell me what is B? B कहाँ नजर आ रहा है? ये ट्यूब्यूल्स, ये रही.
बिल्कुल प्लेन है, राइबोसोम्स के बगैर है. सो दिस इज SER. ठीक है, SER है. फोर्थ आंसर, मतलब फोर्थ है, बी का लेबल फोर्थ है. सी में क्या है, सी कहाँ है, ये बीच में डॉटेड. तो ये ER किसके बाहर लगे हुए हैं, न्यूक्लियस के बाहर. तो ये डॉटेड क्या होगा इसका फिर, न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म गिवन है, नहीं गिवन है, न्यूक्लियस गिवन है. तो ये न्यूक्लियस ले सकते हैं हम, है ना. सो दिस इज न्यूक्लियस, सी इज न्यूक्लियस. नाउ व्हाट इज डी? डी वाज एन एम्प्टी स्पेस अराउंड द ER. Was it an empty space? Is there any empty space around the ER? No, that is filled with the cytoplasm. So what is D here? Cytoplasm option है 3. ठीक है, दिख रहा है आपको D कहाँ लेबल किया, देखो D कहाँ मार्क किया हुआ है, खाली जगह में. तो खाली जगह में क्या आ रहा है, साइटोप्लाज्म आ रहा है. सो दिस वाज D3. ठीक है, ऑप्शंस आपकी ये A वाली बन रही है, देखो A पे 5, B पे 4, C पे 8, D पे 3. So this was the correct answer, A. 11th question of set A, that is having the answer A. 12th question. 12th is, according to the fluid mosaic model, cell membranes are semi-fluid where lipids are integral proteins can diffuse randomly. In recent years, this model has been modified in this regard. Which of the following statement is incorrect? अभी ये जो मॉडल है उसको मॉडिफिकेशन दिया है, तो इनमें से कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. नाउ अगेन यू पुट योर थम्स अप एंड थम्स डाउन प्लीज. प्रोटीन्स कैन ट्रेवल विद इन द लिपिड बाइलेयर. इज इट ट्रू और फॉल्स? आपको इनकरेक्ट ढूंढना है. इज दिस करेक्ट और इनकरेक्ट? हाँ जी, दिस इज करेक्ट. प्रोटीन्स तो बीच में है ही है ऑलरेडी, तो उसने मॉडल चेंज थोड़ा कर दिया, इन रिगार्ड टू दिस मॉडिफाई किया. ठीक है, मॉडिफिकेशंस हुई हैं कुछ, लेकिन उनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो उसके हिसाब से अगर हम चले तो प्रोटीन्स तो बीच में थी ही इंटेग्रल, तो ये करेक्ट है. इट इज नॉट इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज प्रोटीन्स कैन रिमेन कन्फाइंड विद इन द सर्टेन डोमेन्स ऑफ द मेम्ब्रेन. ऐसा होता है क्या? सर्टेन डोमेन्स ऑफ द मेम्ब्रेन में ही रहती हैं प्रोटीन्स. ऑफ कोर्स, तभी तो हमने बोला था कि गेट्स बने होते हैं, है ना. प्रोटीन्स के कुछ गेट्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड गेट्स होते हैं, जिसमें से ट्रांसपोर्टेशन होता है. ऐसा नहीं है कि सारी की सारी प्रोटीन एक ही जगह इकट्ठी हो जाएगी और बाकी मेम्ब्रेन खाली रह जाएगी, ऐसा तो नहीं है. तो कुछ स्पेशल डोमेन, स्पेशल एरिया, स्पेशल रीजन्स हैं जहां प्रोटीन्स अपने हिसाब से अरेंज हैं. ठीक है. प्रोटीन्स कैन आल्सो अंडरगो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स इन लिपिड बाइलेयर. इज इट फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स? हाँ जी, फ्लिप फ्लॉप होता है मूवमेंट में कि नहीं होता? इनकरेक्ट ढूंढना है आपको. आपको ट्रांसपोर्टेशन समझाया था मैंने, मेरे ख्याल से क्या किया था हमने, करियर मॉलिक्यूल्स ओपन वन साइड, ओपन ऑन अनदर साइड, सो दैट इज फ्लिप फ्लॉप, है ना. सो दैट इज अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट. Many proteins remain completely embedded within the lipid bilayer. Many proteins completely remain embedded. बहुत सारी प्रोटीन्स क्या लिपिड बाइलेयर के बीच में ही फिक्स्ड है. हमने जब डायग्राम बनाया था तो कितना बड़ा हमने बाइलेयर बनाया था, हमने एक इंटेग्रल प्रोटीन बनाया था, जबकि इंटरनल और एक्सटर्नल कितने सारे बना दिए थे, है ना, याद है. तो बीच में कंप्लीटली एम्बेडेड विद इन द लिपिड बाइलेयर नहीं होगा, वो नहीं है. दैट इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इट इज नॉट कंप्लीटली एम्बेडेड विद इन द लिपिड लेयर, बट इट कैन बी प्लेस्ड एट आउटर और इनर सरफेस मोर कॉमनली. ओके, सो 12th आंसर इज डी. 13th question. Consider the following statements and select the correct options. The endomembrane system include plasma membrane, ER, Golgi complex, lysosome and vacuoles. अच्छा, आपको फिर से क्या ढूंढना है? करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है. हाँ जी, बताइए. Put your thumbs up and down, please, for the correct and incorrect statements. The endomembrane system include plasma membrane, ER, Golgi complex, lysosome and vacuoles. Is it incorrect or correct? Confused? Anjali is saying not correct. Very good. This is because it does not include the plasma membrane. ER है, Golgi है, lysosome है, vacuole है, लेकिन plasma membrane तो नहीं था ना, वो तो हमने पहले अलग से पढ़ लिया था. Next is next option is ER helps in transportation of substances, synthesis of proteins, lipoproteins and glycogens. Anji, you have to find the correct option out here. The endomembrane system, correct option ढूंढना है.
एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट वन थिंग इज लाइक अगर हम ये भी कंसिडर करें कि अगर लेट्स सी अगर कोई और नहीं आती तो यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं इसको, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दोनों बनाती हैं, लिपिड्स भी बनाती हैं और प्रोटीन्स भी बनाती हैं, और वो दोनों चीजें चाहिए होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनने के लिए, तो वो भी लिया जा सकता है। चलो लेट अस कंसिडर, ये इसको पार्शियल यस रखो। आगे देखते हैं, अगर सारे इनकरेक्ट हुए तो फिर वही पार्शियल वाला ही हमारा सही होगा, नहीं तो हमें कंफ्यूजन होगा, हम देखते हैं, ठीक है। ओके, ईआर हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, synthesis of proteins, lipoproteins and glycogen. No glycogen is produced by ER, है ना? So that is wrong. Only proteins and lipids are produced. This is wrong. Third is ribosomes are involved in protein synthesis. That is correct. This is also correct. C वाला भी correct है. Okay. Next is mitochondria help in oxidative. अच्छा नीचे हैं options. I was confused. I thought हमें इसी पे से ढूंढना है. Sorry. Okay. Back again. दोबारा फिर से पढ़ते हैं. फिर वो partial incorrect को छोड़ दो. ठीक है. Partial incorrect छोड़ दो. A alone वाला तो गलत ही हो गया हमारा. Okay. C is correct. फिलहाल C is correct. Ribosomes are involved in protein synthesis. D वाला क्या है? Mitochondria help in oxidative phosphorylation and generation of the ATP. ये भी correct है. C भी correct है. D भी correct है. और अब B पे question आ गया. क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस हैं B, C and D, A alone, B alone, C alone. So answer is A, B, C and D. I'll confirm for ER glycogen. अब ग्लाइकोजन हमने बनाया तो था मेरे ख्याल से, नहीं उस पे बनाया था. ग्लाइकोजन ER प्रोड्यूस करती है क्या ग्लाइकोजन? हाँ जी, एनीवन हैविंग एनी आइडिया? क्योंकि C and D तो दोनों इकट्ठे A में ही आ रहे हैं. So answer will be betterly B, C, D. Anyone having any idea that does the ER produces glycogen? Glycogen in what concern they are saying, I'm not sure. I'll just confirm this and I'll tell you, right? Tomorrow, definitely. Next questions we'll discuss in the further classes. Okay. Today, possibly, I'll be sending you the solved paper, the whole 2 sets. Okay. Photos of this. पूरा टिक मार्क करके आपको अच्छे से भेज दूंगी मैं, और आप लोग एक बार उसको अच्छे से रिव्यू कर लेना. And if you have any controversial answers, then we can discuss it here. Okay, we can discuss the controversial questions only, because tomorrow you are having your PTM also. So before your PTM, the things should be clear to you, right? Anybody having any doubt now, you can ask me.